Hello everyone, welcome to physics class. Previously we have discussed about Kirchhoff's law. So now in this class we are going to discuss about its application. So let's start with Wheatstone bridge. Okay, what is a Wheatstone bridge? It is an arrangement of four resistances used to determine one of these resistance quickly and accurately in terms of the remaining three resistances. बेसिकली इसमें होता क्या है, वी यूज टू अरेंज फोर रेजिस्टेंसेस इन अ quadrilateral such that these four resistances are set in the four arms of that quadrilateral. In this, three resistances are known to us. The fourth we have to find. So let's see how we are going to find that fourth one. Okay. See, I have taken a quadrilateral A, B, C, D, in which I have placed my four resistors P, Q, R and S. These are the resistors. Suppose R is unknown to us and remaining these three are known. Now I have connected this arrangement with a source having EMF epsilon. So I have connected galvanometer in the diagonal BD. Now what is a galvanometer? A galvanometer is a device which is used to measure electric current. Why I have used galvanometer? Galvanometer हमने इसलिए यूज किया because it uses to measure, it can measure a very little amount of current also. अगर इसमें से बहुत कम करंट भी जा रहा होगा तो ये बहुत अच्छे से रीड कर लेता है because it is very sensitive. एमीटर से भी ज़्यादा कम होता है इसका लीस्ट काउंट. ओके, so I am using a galvanometer. Now suppose I current now flows through this source. So at point A, this I will going to split into two parts. Okay, suppose I1 and I2, I got splitted into I1 and I2. I1 is now flowing in branch AB and I2 in AD. Similarly, when this I1 current will go to B, it will further split into I3 and IG. IG I have named for current through galvanometer. Okay, now I3 is flowing from BC. Okay, now if we will concentrate on DC branch, here I have indicated I4 because I2 and IG is going to combine in this point D. Okay, so let's see how we are going to calculate the unknown resistance. So I have applied Kirchhoff's current rule in point B and D. So at point B, if I will apply KCL, then I find that I1 will be equal to I3 plus IG. That should be equals to, अगर मैं उसे और फर्दर मैथमेटिकली डिराइव करूँ, उसको सबको एक तरफ IG और I3 को एक तरफ ले आऊँ तो ये मेरे को मिलेगा I1 माइनस IG माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब पॉइंट डी पे जाते हैं तो देखिए I2 इनकमिंग है, IG इनकमिंग है, I4 आउटगोइंग है. सो I2 प्लस IG इज इक्वल्स टू I4. अब I4 को फिर से राइट से लेफ्ट में ले आया, सो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया, I2 प्लस IG माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0. ओके, ये दो इक्वेशंस मिल गए. अब एक काम करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए A, B, D और B, C, D, ये हमें दो लूप मिल रहे हैं. पहला लूप ये और दूसरा ये. ओके, तो अब मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट लूप में KVL लगा लेता हूँ, वैसे ही सेकेंड लूप में फिर से. ठीक है, नाउ क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज कैसे लेना है वो आपको पहले से पता है, आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज लीजिए यहाँ और यहाँ जो भी लेना है आपकी मर्जी. सो जब मैंने KVL लगाया तो मेरे पास एक इक्वेशन आया I1P प्लस IG इंटू G, वेयर G इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर, माइनस I2 इंटू R इज इक्वल्स टू 0. देखिए क्लॉकवाइज अगर लें तो देखिए ये डायरेक्शन इधर ही था, क्लॉकवाइज ही जा रहा है, इस वजह से प्लस I1P आया. IGP ये भी क्लॉकवाइज आ रहा था, लेकिन I1 ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दैट्स व्हाई ये माइनस. सिमिलरली इस लूप में भी बात करें तो इस लूप को भी अगर मैं सॉल्व करूँ, KVL लगाऊं, तो मेरे पास इक्वेशन आ रहा है I1P प्लस I3Q माइनस I4S माइनस I2R इज इक्वल टू 0. ओके, एक्चुअली मैंने IG को ये पहले इक्वेशन से जो एक्सप्रेशन आया उससे मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया था, इस वजह से मेरे पास जो सेकेंड लूप का इक्वेशन आ रहा है वो है IP प्लस I3Q माइनस I4S माइनस I2R इज इक्वल्स टू 0. ओके,
बेसिकली अगर आप सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ क्लॉकवाइज लिया तो ये आएगा I3 इंटू क्यू, ठीक है, प्लस I3 इंटू क्यू माइनस I4 इंटू एस माइनस IG इंटू जी। तो माइनस IG इंटू जी की जगह मैंने ये वाला इक्वेशन को पुट किया और ये मुझे इक्वेशन ऑब्टेन हुआ। ओके, चलिए अब बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस पॉइंट आता है। बैलेंस पॉइंट कब आता है, जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाता है। मतलब इफ वी आर गेटिंग पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पॉइंट डी इक्वल, मतलब VB इक्वल्स टू VD, देन दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस कंडीशन। ओके, और बैलेंस कंडीशन अगर हो गया तो डेफिनेटली ये पोटेंशियल सेम है, तो करंट इससे पास होगा क्या, नहीं। तो IG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ का पोटेंशियल इस पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर है, इस पॉइंट पे जो जितना पोटेंशियल उतना ही इधर रहेगा पोटेंशियल, तो डेफिनेटली यहाँ करंट नहीं जाएगा। तो क्या होगा, I1 जो है यहाँ आने के बाद डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल है वो सेम है। ऑफकोर्स यहाँ अगर पोटेंशियल कम होता तभी ये करंट इधर जाता। ओके, वैसे ही I2 जो है वो डायरेक्ट पॉइंट डी पे आएगा और सीधा C के लिए चला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल B पर जो है वो D के बराबर है। अगर नहीं होता, B पर पोटेंशियल कम होता तो I2 कुछ पार्ट उधर चला जाता। लेकिन बैलेंस कंडीशन में क्या है, पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D आर इक्वल, सो I2 जो है वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, इधर C की तरफ। तो इस केस में क्या दिख रहा है, जब पोटेंशियल इक्वल है तो I1 किसके बराबर हो गया, I3, क्योंकि कोई भी करंट अब यहाँ नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा इधर चला जा रहा है, तो I1 इज इक्वल टू I3 हो जाएगा। सिमिलरली I2 विल बी इक्वल टू I4, क्योंकि कोई भी करंट इस ब्रांच में नहीं जा रहा है, ना ही वहां से आ रहा है। ठीक है, सो जब गैल्वेनोमीटर देखिए बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हुआ तो IG क्या हो गया, 0। सो I1 इक्वल्स टू I3 एंड I2 इक्वल्स टू I4। ओके, नाउ हमारे पास एक और इक्वेशन देखिए, अब IG 0 हो गया है ना, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0। सो I1P विल बी इक्वल टू, ये माइनस में वहां जाके क्या हो गया, प्लस। सो I1P इज इक्वल टू I2R। तो अब हम ये इक्वेशन I1 इक्वल्स टू I3, I2 इक्वल्स टू I4, इसको पीछे वाले इक्वेशन 2.480 ये यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो I3 की जगह क्या आ जाएगा, I1, और I4 की जगह क्या आ जाएगा, I2। तो हमारे पास नया इक्वेशन आया I1P प्लस I1Q माइनस I2S माइनस I2R। ओके, अब मैं I1 को कॉमन आउट निकाल लेता हूँ इसमें से, और I2 को कॉमन आउट निकाल कर राइट साइड ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो माइनस I2 पूरा कॉमन आउट हो जाएगा, S और R अंदर बचेंगे, माइनस है वहाँ जाके प्लस हो गया। तो ये देखिए मेरे पास नया इक्वेशन आया I1P प्लस Q इज इक्वल टू I2R प्लस S। ओके, नेक्स्ट अब हम इक्वेशन 2.51 और 2.52 को डिवाइड करते हैं। देखिए ये 2.51 I1P I2R और ये वाला इक्वेशन जो अभी अपने ऑब्टेन किया उसको डिवाइड करें तो हमारे पास नया इक्वेशन आ रहा है I1 कट गया, I2 कट गया, तो ये आ रहा है न्यूमरेटर में P प्लस Q अपॉन P इज इक्वल टू R प्लस S अपॉन R। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो देखिए P वन टाइम कैंसिल हो जाएगा और इस Q के साथ P बचा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस Q अपॉन P। सिमिलरली इन राइट हैंड साइड 1 प्लस S अपॉन R। वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगा Q अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन R। इसको और आप अरेंज कर सकते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ओके, सो सपोज अब हमारे पास P, Q और S ये तीन जो है नोन रेजिस्टेंस है, तो अब मैं डेफिनेटली अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकता हूँ। ओके, सपोज इन दो का मुझे सिर्फ रेशियो पता होता, ठीक है, इनका रेशियो पता होता, ये अननोन रहता और ये नोन रहता, तब भी मैं इस केस में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकता हूँ। ओके, चलिए सो इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज P is equals to 100 ohm, Q is equals to 1000 ohm and R is equals to 40 ohm. If the galvanometer shows zero deflection, determine the value of S. So definitely I have taken that formula P upon Q is equals to R upon S. व्हीटस्टोन ब्रिज बोला है डेफिनेटली, और उसमें गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो भी कर रहा है बोला है। ठीक है, सो S is equals to जो भी वैल्यू, मेरे को S अननोन था तो मैंने S को एक तरफ रख लिया। सो इक्वेशन अब मेरे पास आ गया Q अपॉन P इंटू R। Q की वैल्यू मैंने रख दी, सबकी वैल्यू मैंने रख दी, तो डेफिनेटली आफ्टर सॉल्विंग इट इज कमिंग एज 400 ओम। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X व्हेन द व्हीटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस्ड? ओके, गिवन P is equals to 500 ohm, Q is equals to 800 ohm, R is equals to X plus 400।
एंड एस इज इक्वल टू 1000 ओम। सो डेफिनेटली हमें फिर से वही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। देखिए इसमें मुझे आर एक एक्स के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। सो मुझे डेफिनेटली एक्स की वैल्यू निकालना है और पूछा भी वही है एक्स की वैल्यू। सो फिर से इसे मैंने अरेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मैथमेटिक्स सॉल्यूशन आपको पता है। सो एक्स की वैल्यू आ रही है 225 ओम। ओके, कुछ भी नया नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज किया और ये पैटर्न बताने की कोशिश की हूँ कि ऐसे पैटर्न के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मीटर ब्रिज। A meter bridge is simplest practical application of Wheatstone bridge. We can use it to measure an unknown resistance. So let us see how the construction of meter bridge. तो बेसिकली मीटर ब्रिज में हम एक 1 मीटर लेंथ मैग्नीन वायर लेते हैं, ठीक है, और इसे स्ट्रेच करके 2 एल शेप कॉपर स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सपोज मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इसे कनेक्ट कर दिया, ये एल शेप कॉपर स्ट्रिप हो गया, ठीक है। अब इन कॉपर स्ट्रिप्स, ये एक और कॉपर स्ट्रिप है, इन कॉपर स्ट्रिप के बीच में मैं 2 रेजिस्टेंसेस लगा रहा हूँ। सपोज इस G1 गैप पर P लगाया और G2 गैप पर Q रेजिस्टेंस लगाया। ओके, नाउ एट द मिडिल पॉइंट E आई हैव कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर। मैंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पर मैंने जॉकी लगाया। ये जॉकी क्या करेगा, इस वायर पर स्लाइड करेगा या टच करेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जब मैं इसे टच करूंगा इस वायर से, तो यहाँ मुझे कंप्लीट सर्किट मिलेगा, ये वाला, ठीक है। सपोज ए से करंट फ्लो होना चालू हुआ, सी पे गया, पी पे गया, ई पे गया, उसके बाद ये जॉकी से होते हुए इस वायर को टच करेगा, ठीक है। सो देखिए अब ये वायर क्या है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस लेगा, है ना, इस वायर की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। सो देखिए अब व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। एक रेजिस्टर ये हो गया, दूसरा रेजिस्टर ये हुआ। जब मैंने गैल्वेनोमीटर बीच में लगाया, ये देखिए डायगोनल जैसा काम कर रहा है ना। तो ये सपोज जे पॉइंट पे आया, तो इतना लेंथ जो रहेगा ये कुछ रेजिस्टेंस देगा और इतना लेंथ रहेगा वो कुछ अलग रेजिस्टेंस देगा। हमने देख रखा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। लेंथ देखिए, यहाँ लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, तो ये भी एज अ रेजिस्टर्स काम करेगा मेरे लिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास देखिए 4 रेजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन आ गया और ये गैल्वेनोमीटर बीच में। तो इस वजह से मैंने इसे एप्लीकेशन कहा था व्हीटस्टोन ब्रिज का। ओके, चलिए, तो डेफिनेटली मैं अपना पुराना जो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था उसे यहाँ यूज कर सकता हूँ। पर अब यहाँ जो 2 रेजिस्टेंस रहेगा उसकी जगह लेंथ वाइज रेजिस्टेंस लूंगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब हमें करना क्या है, इस जॉकी को इस पूरे वायर में डिफरेंट पॉइंट पर ज्वाइन करते जाना है, टच करते जाना है। जैसे ही मैंने सोर्स ऑन कर दिया, करंट सब फ्लो होना चालू हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इसे दूसरे लेंथ पर टच करते जाऊँगा। जिस पॉइंट पर मुझे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा वो मेरा बैलेंस पॉइंट हो जाएगा। सपोज जे पॉइंट पर मुझे डिफ्लेक्शन 0 मिला, ठीक है। तो अब ये लेंथ कितना हुआ, ये मैं इस मीटर, ये जो स्केल है मीटर स्केल, उसकी हेल्प से देख लूँगा। ओके, रिकॉर्ड करूँगा। सिमिलरली L2 भी निकाल सकता हूँ। तो चलिए, सो P अपॉन Q, मैंने वही बेसिक फॉर्मूला जो बताया, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, वो जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाला था, ठीक है, उसे यूज़ करेंगे। R अपॉन S की जगह अब मेरा वहाँ क्या था, लेंथ था, है ना। सो this length will be equal to r dash into aj upon r dash into jb। aj क्या है देखते हैं, चलिए। aj क्या था, लेंथ था पॉइंट ए से लेकर जहां मुझे जॉकी ने 0 डिफ्लेक्शन दिया था, वहां तक गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिया था जॉकी के टिप तक के, वहां तक का लेंथ है। तो मैंने उसे लिया L1 और jb उसको लिया L2। ओके, सो R dash, now R dash is resistance per unit length, ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो उतने लेंथ का अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो R dash से इंटू लेंथ करूंगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सो R dash इंटू AJ अपॉन R dash इंटू JB। देखिए R dash कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाता है P अपॉन Q इक्वल टू AJ अपॉन JB, दैट विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। AJ पता था, मैंने L1 लिया, JB को क्या लिया था, L2। सपोज अब मेरे पास जो उन 2 रेजिस्टेंस थे P और Q, उसमें से Q नोन था, ठीक है,
Q सपोज नोन था तो मैं डेफिनेटली P जो है वो अननोन अब निकाल सकता हूँ, क्योंकि L1 और L2 मुझे लेंथ पता है और दोनों क्या होगा, सेंटीमीटर या मीटर में होगा। तो मीटर मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये यूनिटलेस टर्म बन गया। और ये जब इधर आ रहा है तो इसका यूनिट क्या है, ओम। तो डेफिनेटली P का भी यूनिट ओम में आ रहा है, मतलब मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है डायरेक्ट, लेंथ कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कंप्लीट रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में मिल रही है। ठीक है, सो ये एक रेशियो हो गया, उसमें मल्टीप्लाई हुआ नोन रेजिस्टेंस, तो मेरा अननोन रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो इन अ मीटर ब्रिज विद अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohm इन द राइट गैप, द रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ इज 3:2। देखिए हमारे पास मीटर ब्रिज में एक लेफ्ट गैप था और एक राइट गैप था। राइट गैप में हमने Q को लिया था, उसमें दिया हुआ है 15 ohm। ओके, नाउ लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 3:2। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर रेजिस्टेंस। सो L1 रेशियो L2 दिया है 3:2, Q दे दिया है 15 ohm। हमने देखा था P अपॉन Q इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। Q हमारे पास 15 है, L1 बाई L2 3/2, तो डेफिनेटली P आ गया मेरा 22.5 ohm। ओके, इतना सिंपल है ये। नेक्स्ट, in a meter bridge the value of resistance in the resistance box is 10 ohm. Okay, the balancing length is L1 55 centimeter. Find the value of unknown resistance. चलिए, सो हमें L1 पता है तो डेफिनेटली L2 भी पता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट L कितना था, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर था। तो अगर L1 55 है तो L2 क्या हो जाएगा, 100 माइनस L1। ठीक है, डेफिनेटली दैट विल बी 45। नाउ हमें P निकालना है, Q दिया हुआ है 10 ohm। ओके, सो P विल बी इक्वल टू Q इंटू L1 अपॉन L2, 100 माइनस L1। सो 10 Q की वैल्यू थी इंटू 55 अपॉन 100 माइनस 55 इज 45। सो P की वैल्यू आ रही है 12.2 ohm। ओके, नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर। सो a potentiometer is a device used to measure an unknown EMF or potential difference accurately. Now you will say, sir, voltmeter is also used to measure potential difference. So an ideal voltmeter does not change the original potential difference. Need to have infinite resistance. Okay, but a voltmeter cannot be designed to have infinite resistance. So potentiometer is one such device which do not draw any current from the circuit and still measure the potential difference. So it acts as an ideal voltmeter. That's why we are using potentiometer. So let's see its construction. Basically potentiometer में हम 4 से 10 मीटर लॉन्ग लेंथ का वो वेरी करता है। ठीक है, कभी कभी कुछ पोटेंशियोमीटर में 4 मीटर, किसी में 5 6 ऐसे करके 10 मीटर तक के लॉन्ग वायर रहता है, जिसे हम मल्टीपल पैरेलल लेयर में ऐसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये जो है ये वायर हमने पैरेलली 10 मीटर को अरेंज किया। इसे हम एक ही स्ट्रेच में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 10 मीटर लॉन्ग सोचिए कितना बड़ा बोर्ड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 मीटर के ऐसे साइड्स बनाकर इसे पैरेलली ऐसे अरेंज कर देते हैं। सो ये एक एक लेंथ जो है वो 1 मीटर है यहाँ। ठीक है, सो ऐसे करके मैंने लेयर्स बना दिया ऐसे 10 करके। सो ये 10 मीटर का एक मुझे वायर मिल गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसमें और एक सोर्स बैटरी की रियोस्टेट इसे अटैच करूंगा पोटेंशियोमीटर के दो एंड ए और बी से। ओके, सीरीज कनेक्शन में। चलिए अब इससे कैसे किसी का ईएमएफ या किसी दो बैटरीज के ईएमएफ का रेशियो निकाल सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, सो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल विद अ पोटेंशियोमीटर। ओके, तो चलिए इसके लिए मैंने क्या किया, इस कंपैरिजन दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए मैं पोटेंशियोमीटर में अरेंजमेंट करता हूँ। तो चलिए देखिए, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये बेसिक वाला। देखिए सी से डी वायर है। ठीक है, यहाँ मैंने रियोस्टेट की और बैटरी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके दूसरे एंड पर, ठीक है, दूसरे एंड पर फिर से अटैचमेंट करूँगा। अब इसमें क्या अटैचमेंट किया, मैंने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, एक के बाद एक, जैसे हमारे पास अभी दो सेल है तो पहले मैं जिसका ईएमएफ निकालना है पहले उस सेल को कनेक्ट करूँगा, उसके बाद सेकेंड टाइम में सेकेंड वाले को। तो मैंने अरेंजमेंट में आपको दोनों एक साथ दिखा दिया अभी। अब मैंने सपोज पहले वाले को यूज़ करना तो डेफिनेटली M1 को M के साथ और N1 को N के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा एक कंप्लीट सर्किट बनेगा। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी सर्किट था, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी सर्किट बन जाएगा। ठीक है,
ये कौन सा सी एम और एम वन कनेक्ट हुए हैं, एन और एन वन कनेक्ट हुए हैं, गैल्वेनोमीटर और ये डी। ओके, फिर से जैसे कि हम मीटर ब्रिज में कर रहे थे, सेम टू सेम इस जॉकी की गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो जॉकी पे कनेक्ट है, उस जॉकी की हेल्प से फिर से नल पॉइंट खोजने की कोशिश करेंगे। इस क्या करूंगा, जॉकी को हर बार दूसरे दूसरे लेंथ पर जाकर टच करता जाऊंगा। कब तक करूंगा, जब तक गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे ही जीरो डिफ्लेक्शन आएगा मैं वहाँ L1 अपना लेंथ फाइंड कर लूंगा। फिर से आपने देखा था उसमें लेंथ, देखिए पीछे जाते हैं, ये स्केल लगा हुआ है, उस स्केल की हेल्प से मैं लेंथ पता कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट, तो वहाँ से मुझे L1 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए ये वाला जब M1 M से कनेक्टेड है, N1 N से कनेक्टेड है और ये मेरा एक लूप बन रहा है, तो चलिए अब मैं यहाँ KVL लगा लेता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब इस वाले सेल पे लगाऊंगा, यहाँ अभी ये नीचे वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, नहीं, क्योंकि मैं इस वाले लूप पे लगा रहा हूँ। कौन सा लूप, C M N G J, ये। ठीक है, तो अब इस वाले लूप पे लगाऊंगा तो देखिए क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज। देखिए जब इसे लगाऊंगा तो देखिए ईएमएफ ये मिल रहा है, एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू, करंट यहाँ फ्लो हो रहा था, ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा L1। ठीक है, तो इक्वेशन मेरा आ रहा है एप्सिलॉन 1 L1 I इंटू R। व्हाट इज R, स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इस पूरे यूनिट लेंथ में, ठीक है, एक इस पूरे वायर में एक एक यूनिट लेंथ पर, एक एक यूनिट डिस्टेंस पर कितना रेजिस्टेंस है, वो है स्मॉल आर। तो पूरा का पूरा इस L1 लेंथ पे निकालना है, तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, स्मॉल आर इंटू L1। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंटू आई वही मुझे बताता है KVL। ठीक है, तो मेरा एप्सिलॉन 1 क्या आ गया, IR L1। सिमिलरली जब मैं M2, अब M1 को हटा देते हैं, M1 को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन 1 वाला काम हो गया। अब मुझे एप्सिलॉन 2 का रिलेशन निकालना है, तो मैं M2 को M से कनेक्ट करूंगा, N2 को N से। ठीक है, अब मेरा क्लोज लूप कौन सा बन जाएगा, C M2 N2 G J। ठीक है, J मैं फिर से जॉकी से क्या करूंगा, नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूंगा। नल पॉइंट वो कहलाता है जहां गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ J पॉइंट पे ही मिल रहा है। अब मेरा ये लेंथ हो जाएगा L2। ठीक है, पहले के लिए था वो L1, अब हो गया L2। फिर से किरचॉफ लॉ लगाता हूँ, तो फिर अब मेरा क्या आएगा, एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू IR L2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास रिलेशन आ जा रहा है एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। L1 अपॉन L2, ये L1 और L2 को मैं वो स्केल से मेजर कर सकता हूँ। ओके, एप्सिलॉन 1 सपोज मुझे नोन था, तो डेफिनेटली अब एप्सिलॉन 2 की वैल्यू मैं बता सकता हूँ। मैंने बोला था मैं इनका कंपैरिजन, या फिर अगर ये नोन हो तो ये अननोन बता सकता हूँ, और सपोज दोनों ही अननोन है, सिर्फ कंपैरिजन करना था मुझे। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से कंपैरिजन भी बता सकता हूँ मैं। ओके, चलिए अब हम वो केस देखते हैं जिसमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। नाउ मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। सो इसके लिए मैंने क्या किया, पोटेंशियोमीटर, देखिए ये C2D वही मेरा वायर है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, ये एक्सटर्नल सोर्स बैटरी, ये मैंने की लगा लिया उसके लिए, जॉकी गैल्वेनोमीटर। अब जिस सेल का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसे मैंने यहाँ लगाया। ठीक है, इसी के साथ पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया एक रेजिस्टर बॉक्स। ठीक है, जिसका मुझे रेजिस्टेंस नोन होगा, मैंने रेजिस्टर बॉक्स लगाया पैरेलल कनेक्शन में और उसे कनेक्ट कर दिया की के साथ। ओके, चलिए, तो अगर मैं इस की को अभी ऑफ रखूं, मतलब की को अभी ऑन नहीं किया, ठीक है, तो डेफिनेटली अभी जो मुझे क्लोज सर्किट मिलेगा वो ये वाला रहेगा। ठीक है, करंट अब इसमें फ्लो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूँगा। कैसे, जैसे पहले कर रहे थे जॉकी की हेल्प से। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। सपोज मेरा नल पॉइंट मिल रहा है फिर से कहीं यहाँ पॉइंट पर L1। ठीक है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मुझे अब KVL लगाना हो, ठीक है, KVL अगर मैं लगाऊं तो वहाँ मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू किस में मिलेगी, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू समथिंग इनटू एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू रो इनटू L।
रो रेजिस्टिविटी, ओके, उसके था। तो मैं अगर रो को एक कांस्टेंट मानूं तो डेफिनेटली एप्सिलॉन को क्या कर सकता हूँ, एप्सिलॉन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ओके। एप्सिलॉन किस पे डिपेंड करेगा, इसी लेंथ पर ही करेगा, L1 पे, ओके। चलिए, अगर मैं आर स्मॉल, जो स्मॉल आर है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मानूं, ठीक है, स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मानूं, और इस कनेक्शन को देखें, जब मैंने की लगा लिया तो डेफिनेटली एक मुझे यहाँ भी लूप मिलेगा। अब करंट क्या होगा, इधर इस लूप में भी फ्लो होगा, इस सर्किट में भी फ्लो होगा, तो इस ये भी एक क्लोज लूप मिल रहा है। अब यहाँ KVL लगा लेते हैं, तो जब यहाँ भी KVL लगाऊंगा तो मुझे I मिलेगा, I विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो I इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, ओके। नाउ potential difference across capital R is, कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, V अपॉन V इज इक्वल टू आई आर। तो I की जगह मैं क्या कर दिया, V अपॉन आर। अब कैपिटल आर को मैंने यहाँ से डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में ले गया, तो मेरा इक्वेशन बन गया V इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर अपॉन आर प्लस आर, ओके। नाउ व्हेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज बैलेंस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, लेट L2 बी, ये एक्चुअल में क्या हुआ, जब हमने सेकेंड टाइम अब जब ये इसको ऑफ कर दिया, अब करंट यहाँ से भी फ्लो रहा है, तो अब फिर से मैंने जॉकी से नल पॉइंट निकालने की कोशिश की। तो सपोज अब जो आ रहा है वो L2 पे आ रहा है, ठीक है। सो L2 पे आ रहा है, तो डेफिनेटली हमने जैसे पहले देखा था एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। सो दिस टाइम दिस V विल बी प्रोपोर्शनल टू L2, और इस V की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन R अपॉन R प्लस R। So epsilon R upon R plus R will be directly proportional to L2, है ना। पहले देखिए, ये वाले इक्वेशन में हमने देखा एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, जब ये कनेक्ट नहीं था। अब जब ये कनेक्ट कर दिए तो इसकी वजह से जब नल पॉइंट मिला वो था L2, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, है ना। नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हमने फॉर्मूला निकाला कितना, एप्सिलॉन R अपॉन R प्लस R, ठीक है, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम, दोनों इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन 2.62 और 2.63, इसको जब कंबाइन करेंगे प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि अब सेम वायर पे हो रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी जो रहेगा वो रो ही रहेगा, रो कैंसल आउट हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा R प्लस आर अपॉन आर, दैट विल बी इक्वल टू L1 बाय L2, ओके। एप्सिलॉन भी कैंसिल आउट हो गया, दोनों सेम था, सेम बैटरी ही यूज़ किया हमने, सॉरी सेम सेल ही यूज़ किया हमने, चेंज नहीं किया था सेल, ठीक है। सो अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस R और इस R को एक साइड ले जाके 1 बना दे, डिवाइड कर लेते हैं, और इस R के साथ उसको रहने देते हैं। मतलब मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को बाइफरकेट कर दिया दोनों न्यूमरेटर के लिए, ठीक है। तो मेरा ये हो गया 1 प्लस R अपॉन R, दैट विल बी इक्वल टू L1 बाय L2। नाउ इस 1 को मैं वहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो और इस R को भी ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जा रही है R L1 बाय L2 माइनस 1। So small r can be further written as capital R L1 minus L2 upon L. This is our required formula. So अब ये R जो कैपिटल R है वो मेरा नोन रेजिस्टेंस है, L1 L2 की वैल्यू मैं वहाँ लेंथ मीटर स्केल से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली इसकी इस फॉर्मूले की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, उसे मैं बता सकता हूँ, ओके। सो